Good morning, students. My name is Mandeep Singh and I'm here for class 6 today. So today we will learn about the rural local self government. This is the third lecture of this chapter, and I hope you will subscribe my channel and you will take updates about your subject. So in the third lecture of the sixth class rural local self government, so first we will learn about the Nyaya Panchayat. So न्याय पंचायत to settle minor disputes, ठीक है, these are just settled on the minor dispute between the people, right? Members of न्याय पंचायत are elected by gram panchayat. Okay, gram panchayat always elect some members, like some wise members, wise citizens of the village. They are elected by the gram panchayat and they will work as the न्याय panchayat. So it is the way of to provide a justice very quickly. Okay, so without much expensive, there is no expenses on taking a nyay in a nyay panchayat by nyay panchayat, right? So this is a zero expenses. So if person is not satisfied by the nyay panchayat, then the person go to the gram panchayat. If the person is not satisfied by the gram panchayat, then he turn his face to the district court, right? So this is the work of the nyay panchayat, to settle down the minor disputes. Members elected by gram panchayat, and it is the way of providing justice very quickly and without much expenses. And if person is not satisfied by the nyay panchayat, then go to the gram panchayat and district court. Now we will learn about the block samiti. So this is also known as panchayat samiti, janapad panchayat, taluka panchayat and mandals, ठीक है. So it always handle the issues which are just working with other villages, right? If one village has disputes with other village, then these disputes are settled down by the block samiti. Several villages form a block looks after greater issues. Okay, so block samiti is formed from the combination of, or for the group of several villages, like 3-4 villages are in block samiti, like 10-12 villages are in block samiti. So looks after greater issues, like these are always looks after the greater issues of two villages, such as opening the schools, opening the hospitals, etc. everything. So these block samiti also supervise the gram panchayat. The gram panchayat is working in a well way or not. The gram panchayat is being a corrupted or not. These all are being checked by the block samiti. Then completion of block samiti, it works for 5 years period. Chairman and vice chairman elected by members of block samiti. Members of legislative assemblies, MLAs. Okay, we will learn about the composition of block samiti, ठीक है. चेयरमैन वाइस चेयरमैन ऑफ द ब्लॉक समिति इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ ब्लॉक समिति, ठीक है. चेयरमैन जो वाइस चेयरमैन होते हैं वो ब्लॉक समिति के मेंबर्स में से ही एक दो को चुन लिया जाता है. Members of legislative assemblies, which are known as MLAs, and members of parliament, which are known as MEs, residing in the block, ठीक है. ये भी ब्लॉक में होते हैं. सरपंचेस ऑफ ऑल ग्राम पंचायत ऑफ द ब्लॉक, ठीक है, वो भी इसमें होती हैं, ठीक है. जो MLA और MPs होते हैं, ठीक है, जो जिस ब्लॉक जो एरिया की ब्लॉक सम्मति है, अगर उस एरिया कोई MLA MP है, ठीक है, तो वो भी इसी का मेंबर होगा. चेयरपर्सन ऑफ द टाउन एरिया कमेटी इफ़ एनी, अगर कोई चेयरपर्सन है टाउन कमेटी एरिया का, ठीक है, वो भी इसका मेंबर है. मेंबर्स ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स के भी इसके मेंबर्स हैं. सम सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर वुमेन, कुछ सीट्स हैं वो वुमेन के लिए भी रिजर्व होती हैं, उनकी अपलिफ्टमेंट के लिए. A block
development officer appointed by the government to implement the plans of the block samiti. So this is the officer always appointed by government to assist the village or block samitis to implement the plans. Now so the function of the block samiti are monitor the functions of ग्राम पंचायत, जो ग्राम पंचायत के काम है उनको मॉनिटर करना है. इम्प्लीमेंट स्कीम्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट इन द विलेज, जो स्टेट गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम्स हैं सच एज, ठीक है, उनको भी लागू करना है. प्लान एंड इम्प्लीमेंट कम्युनिटी डेवलपमेंट, ठीक है, जो कम्युनिटी डेवलपमेंट हो रही है उसे प्लान करना है, ठीक है. एंड plan and implement community development programs for the areas in various fields such as agriculture, irrigation, cottage and small scale industry and education. जो community development programs होते हैं, जो लोगों की भलाई के लिए प्रोग्राम होते हैं किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो एग्रीकल्चर, चाहे वो इरिगेशन, चाहे वो कॉटेज है, कॉटेज इंडस्ट्री है, ठीक है, उन सभी में उनको इम्प्लीमेंट किया जाता है. प्रोवाइड पब्लिक amenities such as hospitals, schools, sanitation and cleanliness. These facilities are also provided by the block committee. Provide high quality seeds, latest agriculture equipment, financial assistance to the farmers. जो एग्रीकल्चर में जो फार्मर हैं उनको जो भी इक्विपमेंट चाहिए, एग्रीकल्चर कोई भी मशीन चाहिए, वो भी ब्लॉक समिति ही प्रोवाइड करती है. इसके अलावा फाइनेंशियल असिस्टेंस जैसे लोन्स देना, ठीक है, ग्रांट्स को इशू करना, ठीक है, ये भी किया जाता है ब्लॉक समिति का. एक्ट एज अ लिंक बिटवीन ग्राम पंचायत एंड जिला परिषद, ठीक है, ये जिला परिषद और ग्राम पंचायत में लिंक मेंटेन करती है. ब्लॉक समिति सोर्सेज ऑफ ब्लॉक समिति टैक्सेस फ्रॉम कल्चरल प्रोग्राम्स सच एज फेयर्स, सच एज फेयर्स एंड पिलग्रिमेज, ठीक है. कल्चर टैक्स लेते हैं, कोई धार्मिक कोई सभ्याचार का प्रोग्राम होता है जब, ठीक है, उससे, ठीक है. लैंड वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी टैक्सेस, ठीक है, उनसे भी इनको पैसा मिलता है. ग्रांट्स एंड लोन्स फ्रॉम दी ग्रांट्स एंड लोन्स फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट एंड द जिला परिषद. ओके, ये जो तीनों है, जैसे टैक्स फ्रॉम लैंड वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये भी इनकी इनकम का साधन है. एंड टैक्स फ्रॉम कल्चरल प्रोग्राम सच एज फेयर्स एंड पिलग्रिमेज, ये भी इनकम का साधन है. और जो ग्रांट्स एंड लोन्स गवर्नमेंट और जिला परिषद की तरफ से मिलते हैं वो भी इनकी इनकम का साधन है, ठीक है. Members of the legislative assemblies and member of parliament residing district, जो डिस्ट्रिक्ट्स में रिजाइड होते हैं. इम्पोर्टेंट वन टॉपिक हैज़ बीन लेफ्ट, जिला परिषद. ओके, सो जिला परिषद आल्सो नॉन एज डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, इसे डिस्ट्रिक्ट काउंसिल भी कहते हैं और जिला पंचायत भी कहते हैं. द जिला परिषद आर एट द एपेक्स ऑफ द पंचायती राज, एपेक्स ऑफ द पंचायती राज सिस्टम मीन्स ये सबसे ऊपर है पंचायती राज सिस्टम में, ठीक है. एज दे ऑपरेट एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल इन ऑल स्टेट्स, ठीक है, ऑल स्टेट्स से डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर इसे ऑपरेट किया जाता है. कंपोजिशन जिला परिषद, चेयरमैन ऑफ द परिषद हु वुड बी द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और मैजिस्ट्रेट, जो मैजिस्ट्रेट और कलेक्टर होते हैं वो इसके चेयरमैन होते हैं. चेयरपर्सन ऑफ द ब्लॉक समिति, जो जितने भी चेयरपर्सन होते हैं ब्लॉक समिति के वो भी जिला परिषद के मेंबर हैं. मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज, एमएलएज, मेंबर पार्लियामेंट, वे भी इनके मेंबर होते हैं. इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर सच एज डिस्ट्रिक्ट जजेस, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एंड डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर, ये भी जिला परिषद के मेंबर होते हैं. मेंबर्स ऑफ सिक्योरिटी गार्ड्स एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स भी इनमें होते हैं. सम सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर वुमेन. सो फंक्शन ऑफ जिला परिषद,
मॉनिटर द फंक्शन ऑफ ब्लॉक समितिज एंड पंचायत, जैसे ब्लॉक समिति पंचायत के फंक्शन को मॉनिटर करती है, वैसे ही जिला परिषद ब्लॉक समिति के फंक्शन को मॉनिटर करती है। ठीक है। इम्प्लीमेंट डेवलपमेंट स्कीम इन डिस्ट्रिक्ट, जितनी भी डेवलपमेंट स्कीम होती है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ आती हैं, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट से, ठीक है, उन सभी को ये इम्प्लीमेंट करते हैं। प्रमोट हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ को प्रमोट करना, जैसे हॉस्पिटल्स, मिनी हॉस्पिटल्स, राइट, डिस्पेंसरीज, ऑल आर ओपन्ड बाय दीज जिला परिषद। प्रमोट प्राइमरी एंड हायर एजुकेशन, सुपरवाइज वेलफेयर प्रोग्राम्स प्लान्ड एंड इम्प्लीमेंटेड बाय दी ब्लॉक समितिज। ठीक है। जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं उन्हें सुपरवाइज करना, प्लान करना, बाद में उन्हें ब्लॉक समिति द्वारा इम्प्लीमेंट करवाना। ठीक है। प्रोवाइड असिस्टेंस टू फार्मर्स टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, राइट। सो नाउ एडवाइस स्टेट गवर्नमेंट ऑन वर्किंग ऑफ द पंचायती राज सिस्टम, पंचायती राज सिस्टम में जो भी इम्प्रूवमेंट करनी है उसकी एडवाइस जिला परिषद देती है स्टेट गवर्नमेंट को। सोर्स ऑफ इनकम, जिला परिषद सेम सोर्स होते हैं जो टैक्स ऑन वाटर, लैंड, इलेक्ट्रिसिटी, पिलग्रिमेज एंड मार्केट्स। ठीक है। कलेक्शन ऑफ मनी फ्रॉम द ग्राम पंचायत विद द अप्रूवल फ्रॉम गवर्नमेंट, कई बार ग्राम पंचायत से भी पैसा लिया जाता है, ठीक है, गवर्नमेंट की अप्रूवल से। ग्रांट्स एंड एड्स बाय द स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है। द पंचायती राज सिस्टम इज़ वेरी इफेक्टिव वे टू सिक्योर पीपल्स पार्टिसिपेशन इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। ठीक है। इवन एट द लोएस्ट लेवल, कि सबसे बड़ा ये एक इफेक्टिव वे है जिसमें लोगों की पार्टिसिपेशन होती है, वो भी लोएस्ट लेवल के ऊपर। इट अपहोल्ड्स द एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया, डेमोक्रेसी को होल्ड करती है। अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। ठीक है। द पंचायती राज सिस्टम हैज़ हेल्प्ड इन एम्पावरमेंट ऑफ विलेजर्स। ठीक है। एम्पावरमेंट मीन्स उन्हें शक्ति प्रदान करना, ठीक है, वो भी विलेजर्स को, पेंडू लोगों को, जो लोग विलेज में रहते हैं। ठीक है। एंड स्पेशली फॉर वुमेन के लिए वर्क करते हैं। सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर वुमेन इन ऑल पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में जितने भी कुछ ना कुछ सीट्स रिजर्व है वुमेन के लिए, क्योंकि ये उनके पार्टिसिपेशन के लिए भी एक्टिव रहते हैं। दीज डेज मैनी विलेज हैव वुमेन एज देयर सरपंच, बहुत सारे विलेज इस टाइम ऐसे जहाँ पे वुमेन सरपंच है। So this is your Panchayati Raj system. This is a pic you can look at here. Panchayat has set up there 1, 2, 3, 4, 5 or 6 members are there, and villagers are sitting in front of the Panchayat. Right? So looks like this every Panchayat working. Right? So thank you so much, students. I hope you will understand this video very well in well way. So thank you so much.